morning, dear students. Students, in the previous class, we have started with the chapter that is molecular basis of inheritance. And we have seen the introduction part that genetic material is a substance which gets transmitted from the parents to the offsprings, or we can say that from generations to generations this material is going to pass, right? So genetic material mainly consists of the genes, that is the components of the genetic material are the genes, and they have an ability to express themselves as well as they have an ability to replicate and transmit into the next generation. So that all were the characteristics of the genetic material. So in this chapter, the very first thing that we need to discuss is to recall our previous class, that is standard 11, in which you have already studied about the structure of DNA. In the structure of DNA, when we talk about DNA, that is deoxyribonucleic acids. Okay. So let us first begin with the discovery of the nucleic acids. न्यूक्लिक एसिड्स को सबसे पहली बार फ्रेडरिक मिशर ने ऑब्जर्व किया था, एंड दैट आल्सो इन द पस सेल्स, एंड ही नेम्ड द न्यूक्लिक एसिड्स एज न्यूक्लियन. मतलब उस टाइम पे न्यूक्लिक एसिड टर्म नहीं था, द वर्ड वाज न्यूक्लियन. ओके, सो द न्यूक्लिक एसिड्स were first observed by Friedrich Mischer in pus cells. तो सबसे पहली बार पस सेल्स, मतलब जो व्हाइट ब्लड सेल्स थे, उनमें कोई मटेरियल उन्हें देखने को मिला, एंड दैट वाज टर्म्ड एज द न्यूक्लिक एसिड्स कहा गया. ठीक है. अब ये जो मतलब उन्होंने जो टर्म दिया था was he, we will directly mention, and named it as nuclein, as it was present inside the nucleus. The word he used was nuclein. Later on he observed that this nuclein is acidic in nature, and therefore he gave the word nucleic acids. Okay, so nuclein was acidic in nature, right? तो एसिडिक था नेचर में, इसीलिए न्यूक्लिक एसिड नाम दे दिया. उसके बाद ऐसे कई रिसर्चर्स आए जिन्होंने इस एसिडिक मटेरियल न्यूक्लियन को काफी बार ऑब्जर्व किया. ऑब्जर्व करते करते दे केम टू डिफरेंट कंक्लूजन्स. They came to different conclusions, right? So some of the researchers said that these nucleic acids are made up of purines and pyrimidines, right? So there was a researcher known as Fisher proposed that nucleic acids consist of purines and pyrimidines. मतलब न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? प्यूरिन्स होते हैं उनमें और pyrimidines होते हैं. ठीक है. फिर ऐसे कई रिसर्चर्स आते गए जिन्होंने ये कहा कि प्यूरिन्स और pyrimidines के साथ साथ जब हम डीएनए की बात करते हैं तो उनमें होता है deoxyribose sugar and phosphoric acid. So there was a researcher known as Levine proposed that there is presence of deoxyribose sugar along with phosphoric acid in DNA, right? तो DNA में
पहले किसी रिसर्चर ने, मतलब अभी सबकी इंडिविजुअल रिसर्चेस चल रही थी, सब ये न्यूक्लियन जो था उसे ऑब्जर्व कर रहे थे कि व्हाट इज इट मेड अप ऑफ, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ इट। तो एक रिसर्चर जो है ही केम टू द कंक्लूजन कि इसमें ऐसा कुछ होता है, प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स जैसे कोई कंपोनेंट प्रेजेंट है, राइट। ही वाज आल्सो द वन हु हैज डिस्क्राइब्ड द 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। लेटर ऑन जो 4 जो न्यूक्लियोटाइड्स है, राइट, जो हम बोलते हैं दैट थाइमिडाइलिक एसिड, राइट, जो 4 जो कंपोनेंट्स है, राइट, गुआनाइलिक एसिड, तो वो जो कंपोजिशन था वो भी उन्होंने दिया था। लिविंग जो था, ही सेड दैट इट वाज not only purine pyrimidine but there was deoxyribose sugar also, as well as phosphoric acid also was present in the composition of the DNA. Researches chalte gaye and then through the X-ray diffraction studies it was concluded, through X-ray diffraction studies it was found that nucleotides were arranged perpendicular to the long axis of the मॉलिक्यूल। मतलब अकॉर्डिंग टू द एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज ये कंक्लूड किया कि इसमें होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स एंड दीज न्यूक्लियोटाइड्स वेर अरेंज्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द मॉलिक्यूल। और उसके बाद स्टार्ट हो गया पूरा कंप्लीट एनालिसिस डीएनए स्ट्रक्चर का। ऐसा भी कहा कि जो एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज से पता चला है कि न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो परपेंडिकुलरली अरेंज्ड हैं। फिर देखा कि 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस बिटवीन द 2 न्यूक्लियोटाइड्स वाज 0.34 नैनोमीटर। ओके, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड वाज 0.34 नैनोमीटर, राइट। फिर ये भी देखा कि 2 स्ट्रैंड्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो 2 स्ट्रैंड्स के बीच में 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर का डिस्टेंस था। डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए दैट वाज 2 नैनोमीटर। और एक हेलिक्स में कितने न्यूक्लियोटाइड्स थे, तो 10 न्यूक्लियोटाइड्स थे। ये सारे कंक्लूजन्स धीरे धीरे आते गए। एट द सेम टाइम चारगैफ वाज अनदर रिसर्चर। Chargaff had explained the rule of complementarity of the bases, right? Explained complementarity rule of the bases. That is, a purine will always be linked to a pyrimidine, right? And the number of purines and pyrimidines are going to be same. ऐसे सब statements जो हैं वो चारगैफ ने दिए थे और उन्होंने कॉम्प्लीमेंटरी रूल समझाया था कि हमेशा ऐसा ही होगा कि अगर एक प्यूरिन है तो उसके ऑपोजिट एक पिरिमिडीन होगा, और अगर यहाँ पे पिरिमिडीन है तो उसके ऑपोजिट एक प्यूरिन होगा। तो ये सारे रूल्स जो है वो चारगैफ ने समझाए थे। और इतना करते करते द नोबेल प्राइज विनर्स were being announced, and they were Watson and Crick, who have explained the 3-dimensional structure of the DNA, right? So 3-dimensional structure of DNA was explained by Watson and क्रीक। वॉटसन एंड क्रीक ने 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर समझाया था डीएनए का, और उन्होंने ही ऐसा कहा था दैट डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इन विच द 2 strands of the DNA are coiled around an imaginary axis. Okay, so DNA is double
हेलिकल स्ट्रक्चर, राइट। और सारे ही जो मेजरमेंट्स थे, राइट, मेजरमेंट्स बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए 2 नैनोमीटर, राइट, बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स दैट इज 0.34 नैनोमीटर, द रूल ऑफ ए टू मतलब एडेनाइन टू थाइमिन एंड ग्वानिन टू साइटोसिन वाज आल्सो एक्सप्लेन्ड बाय द वॉटसन एंड क्रीक स्ट्रक्चर। तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस कहा था। दे अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दे एक्सप्लेन्ड इज दैट the two strands of DNA are coiled around an imaginary axis. The two strands of the DNA were coiled around. coil तो होते हैं पर किसके around? एक imaginary axis के. They also said that both strands are anti-parallel to each other. मतलब one strand will be 5 prime to 3 prime, the another will be 3 prime to 5 prime. मतलब दोनों strands anti-parallel होते हैं. And the next thing he explained was adenine was linked to thymine and guanine to cytosine, right? ये जो statements उन्होंने दिए थे वो पहले किसी ने explain नहीं किए थे, right? And that was the reasons why he got the Nobel Prize for the Watson and Crick 3-dimensional double helical structure of DNA. DNA के दो strands होते हैं और ये जो दो strands हैं उनमें ऐसा होता है कि शुगर और फॉस्फेट्स जो है वो आउटसाइड होते हैं और नाइट्रोजन बेसेस जो है वो अंदर की तरफ होते हैं, राइट। ही ऑल्सो एक्सप्लेन्ड दैट इन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए द बैकबोन ऑफ द डीएनए वाज द शुगर एंड द फॉस्फोरिक एसिड, whereas protruding inside were the nitrogen bases. And therefore one nitrogen base will always be linked to the another. If this one is purine, it will be linked to a pyrimidine. If there is a pyrimidine, it will be linked to purine. No two purines can remain together and no two pyrimidines can also remain together. That was also explained in the double helical structure of Watson and Crick. दोनों ही स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होते हैं, मतलब एक स्ट्रैंड का 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड है तो दूसरे का 3 to 5 है, ठीक है। और एक चीज जो डीएनए के स्ट्रक्चर में समझाई थी दैट वाज द सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, मतलब द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए दे वर्क एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द न्यू स्ट्रैंड। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड्स हैं दे आर वर्किंग एज द पैरेंटल कॉपी फॉर द सिंथेसिस ऑफ द न्यू स्ट्रैंड during replication of the DNA, and this type of replication was known as semi conservative replication, right? क्योंकि देखिए अगर डबल स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं तो अगर ये एक स्ट्रैंड है इसे ओपन कर लिया, ये दूसरा स्ट्रैंड है इसे ओपन कर लिया, तो जो नया डीएनए फॉर्म होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू द पैरेंटल स्ट्रैंड्स, राइट। तो जब भी नया डीएनए फॉर्म होगा तो उसमें एक कॉपी पैरेंटल होगी जो टेम्पलेट है और एक जो है वो नया स्ट्रैंड होगा। सेम वे यहाँ पे भी नया बन रहा है, उसमें एक कॉपी पैरेंटल और एक कॉपी न्यू। इस मेथड को सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन कहा जाता है, जिसके बारे में भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए तो समझना जरूरी है कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड मतलब क्या होता है, राइट। दूसरी चीज है एक हेलिक्स में 10 बेसेस होते हैं एक स्ट्रैंड में, right? There are 10 bases present in one strand and that was also said by Watson and Crick. तो ऐसे कई सारे remarkable statements जो उन्होंने समझाए थे about the structure of DNA that has led them to win the Nobel Prize, right? अभी हमें डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में काफी कुछ डिस्कस करना है, राइट। वी हैव टू डिस्कस अबाउट शुगर, फॉस्फेट एंड बेस। वी हैव टू डिस्कस हाउ दे आर लिंक्ड टू ईच अदर। पर उसके पहले अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए जो होता है वो लीनियर भी होता है और सर्कुलर भी होता है। सर्कुलर डीएनए जो है वो प्लाज्मिड्स होते हैं, राइट, जो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो जो बैक्टीरिया है उनके पास सर्कुलर डीएनए भी होता है, राइट, और जिसमें
हिस्टोन्स नॉन हिस्टोन्स नहीं होते, उसकी जगह पे पॉलीअमाइंस होते हैं। जबकि अगर हम हमारे डीएनए की बात करें तो वो एक लीनियर डीएनए है and there is presence of the histone proteins on which the DNA gets coiled. तो उसके बारे में भी हमें डिस्कस करना है, that is how the DNA gets packaged in the eukaryotic and prokaryotic cell. So we will further continue the topic of structure of DNA in the next class also.